بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی حلف برداری کی درخواست لاہور ہائی کورٹ آج فیصلہ سنائے گی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ صدر کو 3 دن پہلے عدالتی حکم موصول ہوا، اب وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صدر پہلے سوئے ہوئے تھے، عدالت نے انہیں جگایا، صوبے میں کوئی حکومت نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حمزہ شہباز کے وکیل اشتر اوصاف نے کہا صدر جان بوجھ کر فیصلے پر عمل نہیں کر رہے۔ مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر سماعت کرنے والا تیسرا 2 رکنی بینچ بھی جسٹس اسجد جاوید گھرال کی سماعت سے معذرت پر تحلیل۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے مریم نواز کی درخواست پر سماعت کے لیے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سردار احمد نعیم پر مشتمل نیا 2 رکنی اسپیشل بینچ تشکیل دے دیا، جو آج سماعت کرے گا۔ مریم نواز کی جانب سے عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست پر تیسرے بینچ کے روبرو بھی سماعت نہ ہو سکی۔ مریم نواز کی درخواست پر سماعت کے لیے مقرر بینچ کے سربراہ جسٹس سید شہباز رضوی نے درخواست کو سماعت کے لیے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل بینچ کے روبرو بھجوایا تھا۔ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے معذرت کر لی، جس پر فائل نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی گئی۔ چیف جسٹس نے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس اسجد جاوید گھرال پر مشتمل نیا 2 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ تاہم سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اسجد جاوید گھرال نے بھی معذرت کر لی، جس پر تیسرا 2 رکنی بینچ بھی تحلیل ہو گیا۔ 2 رکنی بینچ نے فائل ایک بار پھر نئے بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ مریم نواز نے 27 اپریل کو عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپس کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ مریم نواز کا پاسپورٹ چودھری شوگر ملز کیس میں ضمانت ملنے پر عدالتی حکم کے تحت عدالت عالیہ میں جمع کرایا گیا تھا۔ نون لیگی ایم این اے شیخ روہیل اصغر کے مرکزی دفتر داروغہ والا میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز اور نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے خصوصی خطاب کیا۔ ایم این اے شیخ روہیل اصغر کے مرکزی دفتر داروغہ والا میں ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ ورکرز کنونشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز اور نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا عمران نیازی کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ کیا سازش اس وقت نہیں ہوئی تھی جب عمران نیازی کہتا تھا کہ مر جاؤں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا؟ کی راہ میں روڑے اٹکائے، خود تو 4 سال عوام کا بھرکس نکال دیا مہنگائی سے۔ اگر اب مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے لوگوں نے موقع دیا ہے، نیازی صاحب اگر تم نے روڑے اٹکائے تو یہ عوام کا غصہ، جوش و جذبہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بنی گلا سے اٹھا کر، تمہاری سیاست کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی نے پاکستان کو ملنے والے تحفے بیچ دیے۔ عمران خان نے صرف تحفے نہیں بیچے بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بیچ دیے۔ جواب دو کہ اربوں روپے کی عوام کی زمین تم نے فراگوگی کے نام پر کیوں لگائی؟ جواب دو کہ ہیرو کے سیٹ تم نے قبول کیوں کیے؟ اور جب ایک سرکاری افسر نے جو یونیفارم میں تھا اس نے آپ سے ہیرو کے سیٹ کے بارے میں سوال کیا تو عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ آفیسر یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن۔ ورکرز کنونشن میں لیگی ایم این اے شیخ روہیل اصغر اور خرم روہیل سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پارٹی جھنڈے اٹھائے کارکنان کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ علی اکبر، سٹی 42۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ، عوام کا جینا مزید مشکل ہو گیا۔ لیسکو کا شارٹ فال 1000 سے بڑھ گیا۔ بجلی کی طلب 4500 میگا واٹ، فراہمی 3500 میگا واٹ ہے۔ شہر کے 10 گریڈ سٹیشنز کو اچانک بند کرنا پڑا۔ جبری لوڈ شیڈنگ سے روزے داروں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ ہمارے علاقے میں جو ہے نا وہ روزانہ گھنٹے بعد جو ہے وہ گھنٹے بعد آ رہی ہے لائٹ اور گھنٹے بعد جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کافی ہو رہی ہے اور خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، حکومت کو چاہیے کہ افطاری ٹائم جو ہے نا کم از کم لائٹ نہیں جانی چاہیے۔ سحری ٹائم اور افطاری ٹائم لائٹ جاتی ہے، گھنٹہ آتی ہے اور گھنٹہ جاتی ہے، میجورٹی یہی ہے۔ مگر یہ جو بغیر لانے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ جا رہی ہے، 1 گھنٹہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے رمضان شریف بھی ہے، لوگ نماز تراویح وغیرہ کے پریشان ہو رہے ہیں، سحری اور افطاری کے لیے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ ہر 2 گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی لائٹ جا رہی ہے اور یہ آلموسٹ پورے پاکستان میں چل رہا ہے یہ سلسلہ۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے پچھلی حکومت کی نااہلی ہے یا اس وقت جو چل رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے، سمجھ سے باہر ہے اب یہ، لیکن عوام پس رہی ہے
जैसे पहले पिस रही थी इसी तरह पिस रही। ईद उल फितर की छुट्टियों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। ईद उल फितर के लिए हुकूमत की जानिब से सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ईद की छुट्टियां 2 मई से 5 मई तक होंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए मौजें, ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। ईद उल फितर के लिए हुकूमत की जानिब से सरकारी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। ईद की छुट्टियां 2 मई से 5 मई तक होंगी। फिर 2 मई से 5 मई जुमेरात तक ईद की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हफ्ता इतवार की छुट्टी शामिल करके ईद पर 6 छुट्टियां होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे, घी और खुर्दनी ऑयल की शदीद किल्लत है। LDA ताजपुरा स्कीम धर्मपुरा के यूटिलिटी स्टोर के रैक्स खाली, ठोकर सस्ता। रमज़ान बाजार में भी अशियाए खुरोनोश की किल्लत, खरीदारी के लिए आने वाले सारिफीन को मायूसी का सामना। रमज़ान बाजारों में भी कीमतों का दोहरा मयार, प्याज के दाम में 3 से 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिली है, उनमें यही सब्ज़ियाँ हैं। इसके अलावा कोई इसके अलावा कोई सब्ज़ी जो है ना उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप ये सेल करें। इसमें सब्सिडी में हमारे पास आटा है, चीनी है और ग्रीन चैनल है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं। अब ये आखिरी दिनों में हमारे पास घी आया है जो अब सब्सिडी में है, जो 50 रुपये कम पे रेट पे दे रहे हैं। मेरा दिता गया ना जी व्हाट्सएप इन दस्या है जो 4 किलो बंदा चीनी लै जाता ना जी, फिर वो बंद कर देता। भावें 1 दिन लै जाता 2 दिन बाद, वो फिर उस तो बाद नहीं जाती चीनी। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि सस्ता रमजान बाजार बस नाम का ही है। मार्केट की निस्बत सस्ता रमजान बाजार में अशिया महंगी होने के साथ साथ गैर मेयारी भी हैं। मौसम में तब्दीली, लाहौर को एक और वबा का सामना है। कोरोना और डेंगू के बाद डायरिया का चैलेंज दरपेश, अस्पताल मरीजों से भरने लगे। मुतासरीन में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। सर्विसेज अस्पताल के बच्चा वार्ड में डायरिया के 140 मरीज, बच्चों के लिए बेड कम पड़ गए। डायरिया ने नन्हे मुन्ने बच्चों को निशाने पर रख लिया। सर्विसेज अस्पताल का बच्चा वार्ड डायरिया के मरीजों से भर गया। वार्ड में टोटल 140, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में डायरिया में मुब्तला 40 बच्चे लाए गए। 80% बच्चे डायरिया के मर्ज में मुब्तला होकर आ रहे हैं। 140-150 के करीब डायरिया के एडमिशन होंगे। और ये आप ध्यान में रखिएगा कि वो सीवियर डायरिया के केसेस हैं जो हम एडमिट करते हैं। जो माइल्ड डायरिया होता है, जो ओरल ले सकते हैं, उनको तो हम OPD बेसिस पे ट्रीट करते हैं। तो ये तकरीबन 70-75% दाखिल इस वक्त मरीज डायरिया के होंगे। प्रोफेसर तैयबा बट ने कहा कि ये तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर वालदैन की जानिब से एहतियात ना की गई तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। इस वक्त तमाम बच्चों की हालत तशवीशनाक है। जिन बच्चों की हालत नॉर्मल होती है उन्हें ORS और अदवायात देकर घर भेज दिया जाता है। बदएहतियाती ना करें, साफ़ सुथरा घर का खाना दें बच्चों को। ख़ास तौर पे पानी का सोर्स जो है वो अपना बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। और दूसरा ये कि अगर बच्चे को डायरिया हो जाए तो उसको ORS देते रहें ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन से होती है। अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए तो खुदा न खास्ता तो बच्चे की जान भी इससे जा सकती है। लाहौर में डायरिया खतरनाक हद तक फैल चुका है। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में भी डायरिया के मरीजों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि गंदा पानी, खासकर सड़कों पर लगी रेहड़ियों से मशरूबात का पीना डायरिया फैलने की बड़ी वजह है। शहरी एहतियात करें वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ अजमत अवान, सिटी 42। वज़ीर आज़म का ईद उल फितर की तातीलात में लाहौर के तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर जामी ब्रीफिंग लेने का फैसला। LDA ने मेगा प्रोजेक्ट्स और जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग की तैयारी शुरू कर दी है। हेल्थ कार्ड के नाम पर नई हिकमत अमली, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए सेंट्रल मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला। मैनेजमेंट यूनिट बनाकर हेल्थ कार्ड की सहूलत का जायजा लिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के लिए पंजाब हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी के बाद एक स्पेशल मैनेजमेंट यूनिट भी बनाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए सरकारी खजाने से 18 करोड़ रुपए का बजट लिया जाएगा। यूनिट में भारी भरकम तनख्वाहों पर भर्तियां होंगी। यूनिट हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी की तरह सरकारी अस्पतालों में हेल्थ कार्ड के मुतालिक स्ट्रेटेजी बनाएगा। हेल्थ कार्ड के नाम से मैनेजमेंट यूनिट बनाकर नया ऑफिस भी लिया जाएगा। इससे कबल पंजाब हेल्थ इंश्योरेंस अथॉरिटी के क्याम के इकदाम भी जारी हैं, जिसके लिए कानून में कुछ पेचीदगियां हल करके हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के कुल तरक्याती बजट में से 400 अरब रुपए खर्च कर लिए गए। पंजाब हुकूमत ने रकम मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर खर्च की। पंजाब हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2021-22 के कुल तरक्याती बजट में से 22 अप्रैल तक 400 अरब रुपए खर्च किए हैं। सियासी सूरत हाल के बायस तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का इस्तेमाल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार था, जो अब वफाक में हुकूमत आते ही कुछ हद तक बेहतर हो चुका है। PND बोर्ड हुकाम के मुताबिक फंड्स का सालाना इस्तेमाल 411 अरब रुपए है। माली साल 2017-18 की निस्बत सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। 30 जून 2022 तक 550 अरब रुपए से ज्यादा का इस्तेमाल करना है।
सरकारी स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की पॉलिसी तब्दील कर दी गई। प्रिंसिपल से इख्तियारात लेकर स्कूल काउंसिल के स्पुर्द कर दिए गए। लाहौर के 100 स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा 3 साल से इल्तवा का शिकार है। आइंदा स्कूलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट स्कूल काउंसिल की मंजूरी से नस्ब होंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए स्कूलों को बजट फ्राहम करेगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए फी स्कूल 5 लाख रुपए बजट दिया जाएगा। स्कूल काउंसिल मुहैया करदा बजट के मुताबिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाएंगी। इससे कब स्कूल सरबराहान अपनी मर्जी से बजट का इस्तेमाल करते थे। प्रिंसिपल्स की जानिब से बजट खर्च किए जाने पर स्कूल काउंसिल ने फुट किए जाने का इतराज उठाया था। इतराज उठाने पर अब फंड स्कूल काउंसिल की इजाजत से खर्च करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूलों में कुरान मजीद की लाजमी तालीम देने से मुतालिक दायर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में कुरान पाक की तालीम के पेपर्स लेने के इक़दाम करें। जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस फैसल जमान खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अल्तमिश समेत दीगर की अपील पर समाअत की। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन गुलाम फरीद समेत दीगर अफसरान अदालत में अमल दरामद रिपोर्ट समेत पेश हुई। जस्टिस शाहिद वहीद ने सेक्रेटरी स्कूल से मुकालमा करते हुए कहा, सेक्रेटरी साहब जो रूल्स बनाने थे वो कब तक बन जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल ने जवाब दिया, सर रूल्स का मामला अब तक चल रहा है, समरी भेजी हुई है, नई कबीना तश्कील पाते ही रूल्स की समरी मंजूर हो जाएगी। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि इस केस को निपटा रहे हैं। कुरान पाक की तालीम को तमाम स्कूल्स में यकीनी बनाया जाए। 9वीं से 12वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम के इम्तिहानात अगले तालीमी साल तक यकीनी बनाए जाएं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब और कमिश्नर ऑफिस के इश्तराक से 5 रोज़ा लाहौर शॉपिंग फेस्टिवल कराने का ऐलान। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का कहना है, ईद शॉपिंग फेस्टिवल के तहत 28 अप्रैल से 2 मई तक लिबर्टी से मॉल रोड तक डबल डेकर बसें, जबकि लिबर्टी से पैकेजेस मॉल तक 3 बसें चलाई जाएंगी। शॉपिंग फेस्टिवल में मुख्तलिफ ब्रांड्स पर खुसूसी रियायत भी मिलेगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और कमिश्नर ऑफिस ने लाहौरियों के लिए 5 रोज़ा शॉपिंग फेस्टिवल कराने का ऐलान कर दिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, सदर लाहौर चैम्बर मियां नोमान कबीर, सेक्रेटरी टूरिज्म असदुल्ला फैज ने लाहौर चैम्बर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि ईद शॉपिंग फेस्टिवल के तहत 28 अप्रैल से 2 मई तक डबल डेकर बसें लिबर्टी से माल रोड और लिबर्टी से पैकेजेस मॉल तक चलाई जाएंगी। ये 5 दिन का है जी, ये 28 तारीख से शुरू हो रहा है, 3 तारीख तक ये चलेगा। और हमारा आइडिया ये है कि ईद की शॉपिंग के दिनों में ख़ास तौर पे जो आखिरी 5 दिन है उसके अंदर हम इसको लोगों को टारगेट करें, लोगों को एक जगह से इकट्ठा करके डबल डेकर बस में लेके हम इन मार्केट्स में लेके जाएंगे। मखसूस टाइमिंग्स होंगे, मखसूस रूट होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा कि वो कंसेशन इंजॉय करेंगे। सदर मियां नोमान कबीर ने कहा कि लाहौर चैम्बर मेंबरान को कूपन जारी करेगा। डबल डेकर के जरिए शॉपिंग करने वाले मेंबरान को खुसूसी रियायत मिलेगी। सदर मालोर सुहेल महमूद भट्ट, सदर अनारकली बाजार अशरफ भट्टी ने 15 से 50% तक रियायत देने का ऐलान किया। तमाम लाहौरियों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सामान क्रिएट किया गया ताकि ईद के मौके पर न सिर्फ सस्ती शॉपिंग हो सके बल्कि साथ साथ एंजॉयमेंट भी हो सके। डबल डेकर का अपना एक रोमांस है। ये बसेस शुरू होंगी जी लिबर्टी मार्केट जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ से अनारकली जाएंगी, माल रोड जाएंगी, पैकेजेस मॉल जाएंगी। मैंने 15% का अनाउंस किया है और ये जो इनके जो लोग आएंगे, जो वॉचर्स लेके आएंगे, उनको इसके अलावा डिस्काउंट जो है वो 5% दिया जाएगा। जो हमने यह वादे भी किए उसे इंशाल्लाह पूरा करेंगे। डिस्काउंट देंगे, जो मैंने कहा 10 से 50% तक डिस्काउंट देंगे। और इफ्तारी के बाद अगर जिनके पास कार्ड होगा उन्हें चाय वाय और एंटरटेनमेंट भी करेंगे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन डॉक्टर मोहम्मद उस्मान ने कहा कि तजर्बाती तौर पर ईद शॉपिंग फेस्टिवल के तहत 3 डबल डेकर बसें चला रहे हैं। आइंदा उनकी तादाद और रूट बढ़ाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चूड़ियाँ ख़वातीन के ज़ेवरात में से एक अहम तरीन ज़ेवर हैं जिसको वो इंतहाई शौक से पहनती हैं। चूड़ियाँ किस तरह तैयार की जाती हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ईद की आमद है। ख़वातीन और बच्चियों में चूड़ियों की खरीदारी के लिए काफ़ी ज़्यादा रुझान पाया जाता है। इस वक्त मैं चूड़ियों के कारखाने में मौजूद हूँ। आइए आज आपको दिखाते हैं कि चूड़ियाँ किस तरह तैयार की जाती है और किन मराहिल से गुजरती हैं। पहले मरहले में मेटल की तार को गोल रिंग्स में ढाला जाता है और इसके बाद फास्फोरिक एसिड से धोया जाता है ताकि गर्दो गुबार और मैलापन दूर हो जाए। तार होती है, पहले ये सादोकी से बन के आती है हमारे पास गुच्छियों की शक्ल में। गुच्छियों की शक्ल में बनने के बाद ये जाती है फास्फोरिक एसिड पे, जहाँ पे इसकी फिनिशिंग होती है, मैल ख़त्म होती है।
मैल ख़त्म होने के बाद इसके बाद तकरीबन कलर होते हैं, 12-13 कलर बनते हैं। कलरिंग के बाद ये जाता है मशीनों पे मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनिंग होती है। इस पर डिज़ाइनिंग होने के बाद ये औरतों के पास जाता है, वो इसकी पैकिंग करते हैं और पैकिंग करने के बाद हम इसे मार्केट को सेल करने के लिए भेज देते हैं। चूड़ियों की सफाई सुथराई के बाद मशीनों की मदद से इन पर खूबसूरत नक्शो नगार बनाए जाते हैं। नक्शो नगार बनाने के बाद कारीगरों की मदद से चूड़ियां खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों में डाली जाती हैं। चूड़ियां तैयार करने वाले मुलाजमीन का कहना था कि वो पिछले 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत मेहनत वाला काम है। ईद के मौके पर इतना काम होता है कि मुकम्मल भी नहीं हो पाता। 10 साल से काम करते हैं, ये बड़ी मेहनत का काम होता है। जब रमज़ान का सीज़न आता है, इसमें होता है हमारे जो ऑर्डर वगैरह होते हैं वो भी मुकम्मल नहीं हम कर पाते। तो दिन इधर लड़के दिन रात काम करते हैं, तो इसलिए ये काम बहुत मेहनत का काम है। ईद हो या खुशियों का कोई त्योहार, खवातीन की कलाइयों में खनकती चूड़ियां हुस्न और शादमानी का वो अंदाज पैदा करती हैं जो इनके हुस्न को चार चांद लगाने के साथ साथ ईद की खुशियों के मजे को दुबाला कर देती हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फरिया बतूल, सिटी 42। ईद उल फितर में चंद रोज़ बाकी हैं और ऐसे में शलवार कमीज़ के साथ तिल्ले वाला कोहाटी या पेशावरी जूती ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है। इसीलिए लाहौर के मशहूर टकसाली बाजार की शेखुपुरिया मार्केट में हाथ से बने मुनफरिद जूतों की मांग में इजाफा हो गया। टकसाली का ये शेखुपुरिया बाजार बादशाह अकबर के बेटे सलीम उर्फ शेखू के नाम पर है, जो अपने खुस्साजात, कोहाटी और पेशावरी चप्पल के हवाले से खासी शोहरत का हामिल है। आइए आपको लिए खुस्से या सलीम शाही जूते हमारी रिवायात और सकाफत का एक अहम हिस्सा हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अदवार में तैयार किया जाता रहा है। पुराने जमाने में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे, मगर आजकल फिर इनका फैशन आम है। हाथ की सफाई और महारत के साथ किस तरह इनको तैयार किया जाता है। पहले अपर बनता है, अपर तो बाद सोल तैयार होता है, सोल तो बाद सिलाई होता है, वो कारीगर बाहर बैठा है और सिलाई करता है। उस तो बाद मैं फरमा लाना, फरमा ला ते तैयार कर दे दी जुत्ती। टकसाली और सलीम शाही जूतों की तकरीबन 200 से ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें मुनफरिद और हैंडमेड चमड़े की मुनफरिद वैरायटी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। मगर इस साल लोग महंगाई का शिकवा करते भी नजर आए। आजकल जो है ना ज्यादा कोहाटी और गिरा वाली जूती चल रही है, तो ईद पे हमारी यही कोशिश है कि मुनासिब रेट पे, लेकिन आगे से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से जूतियाँ भी थोड़ी सी महंगी हो गई हैं, तो कोशिश तो यही है कि हम मुनासिब रेट पे सेल करें। इस तारीखी बाजार में मौजूद जूतों की इस मार्केट की ये खसूसियत है कि खरीदार चाहे अमीर हो या गरीब, सबका अपनी इस्तात के मुताबिक खूबसूरत नजर आने का ख्वाब पूरा हो जाता है। टकसाली बाजार की इस खुस्सा मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी खुस्सा मार्केट होने का एजाज़ भी हासिल है। यही वजह है कि यहाँ बनने वाले खुस्से अंदरून और बैरून मुल्क बहुत पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक में रेस कोर्स पार्क में अल मुस्तफ़ा फलाह बहबूद ट्रस्ट की जानिब से 500 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन बैग्स तकसीम किए गए। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर की जानिब से राशन तकसीम किया गया। फूड पैकेज तकरीबन 500 से ज़ायद गरीब, मुस्तहिक़ ख़वातीन और मर्द हज़रात में तकसीम किया गया। तकरीब में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम स्टाफ ने शिरकत की और नज़्मो ज़ब्त को कायम रखा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहना था कि अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट हमेशा मुस्तहिक़ अफराद की मदद के लिए पेश रहा है। रोसा ब्लांका क्लब ब्रावेंट रोड में 40वीं फर्नीचर एक्सपो का एहतमाम किया गया। फर्नीचर एग्जीबिशन का एहतमाम पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर ने कैनन प्राइमैक्स फॉर्म के इश्तराक से किया। शहरियों की बड़ी तादाद डिस्काउंट रेट पर फर्नीचर की खरीदारी के लिए रोसा ब्लांका पहुंच गए। रोसा ब्लांका क्लब रायवेंट रोड में फर्नीचर एग्जीबिशन 14 अप्रैल से जारी है, जो चांद रात तक जारी रहेगा। फर्नीचर एक्सपो में 35 से ज्यादा ब्रांड्स ने शिरकत की है। शहरी मुख्तलिफ अशिया पर 40% तक डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। यहाँ 35 से ज़ायद फर्नीचर ब्रांड्स ने पार्टिसिपेट की है और जिस पे 40% तक खसूसी रियायत दी जा रही है। और इसकी टाइमिंग्स भी हमने जो है बड़ी इजी रखी हैं, जो कि अफ्तारी के बाद, अफ्तारी से 3 बजे से लेके दोपहर 3 बजे से लेके सुबह सहरी तक है, सुबह 2 बजे तक। तो मेरी लाहौर की आवाम से अपील है कि ज़रूर विज़िट करें। पाकिस्तान लाइफस्टाइल के CEO फैसल मोहसिन और डायरेक्टर अदनान अफजल ने शहरियों से फर्नीचर एक्सपो का दौरा करने का मशवरा दिया। शहरियों की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शहरियों ने एक्सपो को खुशाइन करार दिया। मार्केट के हिसाब से अच्छा है, यहाँ पे डिस्काउंट भी है और देखने भी अच्छा है, माहौल भी अच्छा है, इनका वैरायटी भी अच्छी है। रमज़ान मुबारक में लोग खसूसी डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के जानिब से भी इस एक्सपो को खुशाइन करार दिया गया। उनका कहना है कि शहरी खसूसी डिस्काउंट पर मार्केट से कम कीमत में फर्नीचर ले सकते हैं।
ہم لوگوں نے یہاں پہ لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو پہ اپنا ایک سٹال لگایا ہے جو کہ جس کا نام ہے سگنیچر ہوم بائی عائشہ، اور آپ سب لوگ بھی آئیں یہاں آ کر وزٹ کریں، اور ہم لوگوں نے بہت اسپیشل ڈسکاؤنٹ یہاں پہ دیا ہے۔ فرنیچر ایکسپو کی ٹائمنگ دوپہر 3 سے سحری تک ہے، جو کہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ اس دوران شہری رعایتی قیمت پر خریداری کر سکتے ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔